વડોદરા સ્થિત વાસ્વિક હોલ ખાતે અગ્રેસર ગુજરાત સંવાદ કાર્યક્રમનો સંબોધવા કેન્દ્ર સરકારના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી માનનીય શ્રી પિયુષ ગોયલજી પધાર્યા હતા। આ દરમિયાન તેમણે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત વિધાનસભાનું ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે અને હું વડોદરા ખાતેથી મારા ચૂંટણી દરમિયાનના પ્રવાસની શરૂઆત પણ કરું છું। વડોદરા એક સંસ્કારી, સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણની નગરી છે અને અહીંથી મને ચૂંટણી પ્રવાસ કરવાની તક મળે તે મારા માટે ગૌરવની બાબત છે। વડોદરા સાથે મારો નાતો ખૂબ જ જૂનો અને પુરાણો છે। બહુ સારું લાગે છે કે મારો પ્રોગ્રામ ચૂંટણી અનાઉન્સ થવા પછી વડોદરાથી શરૂ થાય છે। રંજનબેન અને મારો ગત 8-9 વર્ષના ઓળખાણમાં સમય ઉપર વડોદરાની વિષય ઉપર અમારી ચર્ચા થઈ, અમારી બાતચીત થઈ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જો હાલમાં જ કાર્યક્રમ થયો ટાટા એરબસ જેવીનો શરૂઆત વડોદરામાં 30 ઓક્ટોબર થઈ। મને લાગે છે આ દિવસ વડોદરાના ઇતિહાસમાં એક સ્વર્ણિમ દિવસને રૂપમાં યાદ રાખશે લોકો। આ શરૂઆત છે વડોદરામાં મોટા પ્રમાણેમાં ઉદ્યોગ આવે, મેક ઇન ઇન્ડિયાની તહેત મેન્યુફેક્ચરિંગનો કામ વધે અને મને લાગે છે કે જેવી રીતને ગુજરાતની પ્રગતિ 2 દશકમાં તેજ ગતિથી દેશ અને દુનિયા જોઈ છે। બડા રૂપમાં બડા પ્રમાણે લોકોને આકર્ષણ છે ગુજરાતમાં આવવા માટે। વડોદરામાં આવીને તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પણ જોવાનો સૌભાગ્ય મળે અને મારો આમ માનવું છે કે વડોદરા એક એવી નગરી છે જ્યાં તમને સંસ્કૃતિ પણ બડે રૂપમાં મળે, શિક્ષાનો પણ મોટો કેન્દ્ર છે। મારો લાસ્ટ વિઝિટ અહીંયા પાવર મિનિસ્ટર્સ કોન્ફરન્સ થઈ હતી ત્યારે રાતમાં અમે ગરબા માટે ગયા હતા, ખૂબ આનંદ આવ્યો। પછી અહીંયા રેલ યુનિવર્સિટી શરૂ કરવા માટે આવ્યો હતો અને હવે તો એને મોટો ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લોજિસ્ટિક્સ માટે એક નવો પ્રયોગ ભારતમાં શરૂ કર્યો છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને। મને લાગે છે કે ચૂંટણીમાં પણ એવી જ રીતે મોટે પ્રમાણેમાં ગુજરાતની જનતા ઐતિહાસિક વિજય ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપવા માંગે છે। આ ગુજરાત જો નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ગુજરાત છે, જો નરેન્દ્રભાઈ મોદીને બનાવ્યો છે, આ ગુજરાત જો એક ગુજરાતીના ખૂન પસીનાથી આજ એક વિકસિત પ્રદેશ બન્યો છે। આ ગુજરાત ભારતની વિકાસ યાત્રાને પણ પંખ આપશે અને ભારતને એક વિકસિત દેશ બનાવવાનો જો સપનો વડાપ્રધાન મોદીજીનો છે, ભારતના 135 કરોડ નાગરિકોના છે, આ સપના પૂરા કરવા માટે ગુજરાત અને ગુજરાતમાં વડોદરા એનો એક બહુ મોટો યોગદાન થશે। આ વિશ્વાસ अटल છે, पाक्को છે। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समाज से जुड़ी हुई राजनीतिक दल है। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हों, अच्छे लोग समाज की और देश की सेवा के कार्य में जुटे, ये हमारा लगातार प्रयास रहता है।
मैं तो चाहूँगा आपके मीडिया में से भी कुछ बंधु, आप भी सेवा कर रहे हैं, अपने काम का के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आप में से भी कोई अगर राजनीति में जुड़ता है तो हम तो उसका भी स्वागत करेंगे। और समाज के हर वर्ग का, मैं हर इंटरैक्शन में जहाँ जहाँ प्रोफेशनल्स को मिलता हूँ, जैसे आज मिलने वाला हूँ, जब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स के साथ मुलाकात होती है, मैं हर उस इंटरैक्शन में एक विचार व्यक्त करता हूँ कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति और राजनीति के साथ देश सेवा का भाव समाज में फैलेगा नहीं। मैं स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पिताजी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के बहुत प्रमुख ऑफिस बेरर हुआ करते थे अपने ज़माने में, BHU से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मुझे तो आनंद आया घुसते ही जब मैंने देखा तो, और जब बताया कि यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स भी आए हैं, मैंने लॉ भी किया हुआ है, पापा इंजीनियर थे, मेरे भाई, मेरे जीजा, पूरा परिवार इंजीनियर्स का भरा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि जब तक प्रोफेशनल्स भी एक बड़े रूप में, आप जैसे प्रोफेशनल्स और अच्छे लोग जितना ज़्यादा बड़े रूप में समाज में काम करने के लिए आते हैं, अच्छा है। और मोहन भाई का भी हम स्वागत करते हैं। सर, इलेक्शन के टाइम पे ही आना, वो समय उन्होंने तय किया है और पार्टी ने शायद सोचा होगा कि वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उनको और मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के अम्ब्रेला में काम करने का। और वास्तव में आज पूरे देश में लोगों को ध्यान में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जो देश हित और जनहित के काम कर रही है, जो गरीब कल्याण के काम कर रही है, जिस प्रकार से देश को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार से विश्व में आज तनाव है, विश्व में कोविड पेंडेमिक और उसके बाद ये युद्ध के लिए वजह से जो इतने हजारों ढेर सारी समस्याएं, उस बीच में पूरा विश्व आज कहता है अगर कोई एक देश है जो ब्राइट स्पॉट है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ा सकते हैं, जो आगे चल के आज $3.5 ट्रिलियन की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, शायद 4-5 साल में 2027 या 28 तक लगभग सबका मानना है कि विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और आगे चल के 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तब हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $30 ट्रिलियन की होगी। यानी आज के 3.5 ट्रिलियन बढ़ के जब 30 ट्रिलियन, इतना बड़ा डेल्टा भारत में है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना टैलेंट है, इतने हमारे युवा युवतियों का हुनर है, हमारी महिलाओं में जो तेज है, हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो युवा शक्ति है, ये इस देश को जो तेज गति से बढ़ाएगी। गुजरात के हमारे लोग जिस प्रकार से गत 20 वर्षों से इस अर्थव्यवस्था को, कहाँ 1 लाख करोड़ की GDP होती थी गुजरात की, आज 19 लाख करोड़ की GDP सिर्फ इतने छोटे समय में। ये दर्शाता है कि क्या संभावनाएं हैं भारत में और आगे चल के भारत के और गुजरात कैसे तेज गति से प्रगति। देखिए, समाज का हर वर्ग पार्टी में आना चाहिए। समाज अलग अलग वर्गों का समाज है और सभी वर्गों को हम आमंत्रित करते हैं, सभी को सीटें मिलेंगी। जो समाज सेवा में, जो पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा है, जो जनता की सेवा में अच्छा योगदान दे सकता है, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। और सीटें की तो एक सीमा है, हर एक को सीट नहीं मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हों या हम में से कोई एक छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, एक आत्मीयता की भावना से, देश प्रेम की भावना से सब काम करते हैं। आपको याद होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिंदगी भर कार्यकर्ता रहता है, उसको जिम्मेदारियां अलग अलग मिलती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे करता है, लेकिन सभी हम सब एक कार्यकर्ता भावना से काम करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो लोग उम्मीदवार के रूप में चुने जाएंगे वो उम्मीदवार के तरह लड़ेंगे और बाकी हम सब उनके पीछे खड़े होकर उनको ताकत